Hi everyone, I am Aryan. I am back again with another episode of Crick Insiders. Today we have a very exciting guest from Bengal to Oman. His story is nothing short of inspiring. বাংলার জন্য সেকেন্ড ডিভিশন আর ফার্স্ট ডিভিশন খেলেছেন আর বেঙ্গল স্টেজেও নক করেছেন, কিন্তু তারপর ওনার লাইফে এমন একটা টার্নিং পয়েন্ট আসেন, উনি ওমান গিয়ে ইন্টারন্যাশনাল স্টেজ খেলেন। আজকে আমাদের সাথে আছে শুভ পাল। শুভদা, ওয়েলকাম টু দ্য শো। থ্যাংক ইউ ফর ইনভাইটিং মি। খুব ভালো লাগছে এসছো। আহ, তোমার এখানে তোমার স্টোরি জানার জন্য আমিও খুব এক্সাইটেড ছিলাম, আর আমাদের অডিয়েন্সরাও খুব এক্সাইটেড আছে। তো বলো, তুমি কোথাকার রেসিডেন্ট? অ্যাকচুয়ালি আমার বাড়ি হাওড়াতে, রেলওয়ে কলোনিতে। ওখানে মনোজদাও থাকতো আগে। তো ওখান দিয়েই সব কিছু ক্রিকেট খেলা শুরু হয়েছে, ঢুকে দেখি। ক্রিকেট কিভাবে শুরু হলো? ক্রিকেট শুরু হলো, খেলা তো প্রথম দিয়ে ছোটোবেলা দিয়েই খেলতাম। ক্রিকেট খেলতে ভালোই লাগতো। আমি জানতাম না কি এত দূরে আসতে পারবো খেলে, তাই ক্রিকেট ভালো লাগতো। কোনোদিনও অ্যাজ আ ক্যারিয়ার ভেবে শুরু করোনি ক্রিকেট? কেরিয়ার ভেবে শুরু করেছিলাম। সচিন তেন্ডুলকরকে দেখতাম খেলতে তখন। আর আমার বাবা গাঙ্গুলির ফ্যান, তো উনি বলতেন সৌরভদার ছক্কার মতন এমনি ছক্কা কবে মারেন। তো ওনাকে দেখে ইন্সপায়ার হয়েছি। আর অ্যাডভান্টেজও ছিল, মনোজদা আমাদের ওখানেই থাকতো, মানে রেলওয়ে কলোনিতে। ওখান দিয়ে ও বড় হয়েছে, তো ওনাকে দেখে আরও মানে ইন্সপিরেশন হয়েছি আমি। আর ক্রিকেট খেলার জন্য তুমি কি কোচিং ক্যাম্পে থেকে শুরু করেছো, না টেনিস ক্রিকেট থেকে শুরু করেছো? হ্যাঁ, কোচিং ক্যাম্প দিয়েই শুরু করেছি। আমার প্রথম কোচ হচ্ছে মানবেন্দর ঘোষ, যিনি মনোজ তিওয়ারিরও কোচ। পাইক পাড়াতে প্র্যাকটিস হতো আমাদের, আমরা যেতাম। ওর মতন কোচ আজ পর্যন্ত পাইনি আমি চাইল্ডহুডে। উনি আমাকে হাত ধরেই খেলা শিখিয়েছে। অনেক স্ট্রিক্ট অ্যান্ড ডিসিপ্লিন ছিল বহুত। তো ওনার অনেক মানে কি বলবো, অনেক দক্ষিণা দিয়ে কি বলবো ওকে আমি, মানে অনেক হেল্প করেছে আমাকে অ্যাজ এ ক্রিকেটার। আর বাড়ি থেকে কিরম সাপোর্ট ছিল? বাড়ি থেকে অ্যাকচুয়ালি ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশনের বাবার অত ভালো ছিল না। আমার রাস্তার দোকান, আমার বাবা একটা স্ট্রিট হকার ছিল, এখনো আছে, কোনো প্রবলেম নেই। কিন্তু আগের যা সিচুয়েশন ছিল, এখন যা সিচুয়েশন আছে, একটু ডিফারেন্স হয়েছে ওখানে যাওয়ার পর। কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশন অত ভালো ছিল না, কিন্তু প্যারেন্টসরা সাপোর্টিভ ছিল। ওই স্ট্রিট হকারের কাজ করে পড়াশোনা করানো, প্লাস ক্রিকেট এখন এক্সপেন্সেস বহুত আছে, আগেও অত ছিল, কিন্তু চলে গেল। প্যারেন্টসের বহুত বড় সাপোর্ট ছিল, বাবা মায়ের অনেক সাপোর্ট, তার জন্য আমি আগে গেলাম। ওনারা কখনো কোনোদিনও বলেনি কি তোমায় জব করতে হবে, তুমি শুধু খেলো। আমি বাস খেলায় ফোকাস ছিলাম। তুমি কোন এজে প্রফেশনাল ক্রিকেট শুরু করেছো? আফটার ক্লাস 10 এক্সাম দেওয়ার পর বাবা বলেছিল, এক্সামে তুমি যদি ভালো পার্সেন্টেজ আনবে তাহলে তুমি ক্রিকেটে আসবে, অ্যাডমিশন নেবে। তখন আমাকে আমার একটা বন্ধু নিয়ে যান, বেস্ট ফ্রেন্ড, ওখানে অ্যাডমিশন করাই পাইক পাড়াতে। তো বাস ওখান দিয়ে। তো ক্রিকেট খেলার যে তোমার প্যাশন ছিল, তোমার ফ্যামিলি তো একটা তোমার মোটিভেশন ছিল, আর তোমার কি প্যাশন, মানে কি তোমাকে এন্টাইজ করতো ক্রিকেট খেলার জন্য, ফেম না প্যাশন তোমার? প্যাশন, ফেমের জন্য যায়নি কোনোদিন, প্যাশন। কেন কি আমি দেখলাম আমার পাড়া দিয়ে মনোজ তিওয়ারি খেলছে। ওনাকে দেখে আমি বড় হয়েছি ছোটবেলা দিয়ে। মানে আমি যখন প্রায় 5 বছর বয়স, তখন ওনাকে দেখে আসছি। তো উনি আমাদেরও গাইড করতো তখন, টেনিস বলে ও খেলতে। ওনার যা ব্যাটিং ছিল, এখনো ওর মতন ব্যাটসম্যান নম্বর 4-এ ইন্ডিয়ার মতন, ইন্ডিয়াতে নেই। আমি বেঙ্গলের তো ব্যাকবোন উনি, ইন্ডিয়ার কথা বলছি। ওনার মতন ব্যাটসম্যান 4 নম্বরে নেই। 4 নম্বরে নেমে যে ডমিনেটিং রান করে, মনোজ তিওয়ারির মতন ব্যাটসম্যান নেই। যেহেতু ওনার কোনো কারণ আছে, হতে পারে, হয় পলিটিক্স, হয় যেমনি দিল্লি মুম্বাইয়ের ছেলেদের সাপোর্ট আছে, বেঙ্গলের ছেলের সাপোর্ট নেই। তো তোমার ক্রিকেট তুমি বললে মনবেন্দর ঘোষ স্যারের সাথে তুমি শুরু করেছো ক্যাম্পে। তো ওই ক্যাম্প থেকে তোমার ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্রেংথ অতটা ঠিক ছিল না, তো তুমি ওই ক্যাম্প থেকে কতটা সাপোর্ট পেয়েছো? অনেক সাপোর্ট পেয়েছি, স্যার ফিস নিত না। স্যার এত ভালো ছিল কি দিনভর আমাকে ব্যাটিংই করাতো। আর মানে এত ভালো কি ফিল্ডিং, ওর ওর জন্য ইম্পর্টেন্ট ছিল ডিসিপ্লিন। প্র্যাকটিসে রোজ যেতে হতো। ওখানে ভালো ভালো প্লেয়ার আসতো, অরিন্দম দাস, তারপর মনোজ তিওয়ারিও আসতেন। তো ওনাকে দেখে আরও কিছু ইন্সপিরেশন হয়। তো যদি আপনার চোখের সামনে কেউ দেখবেন ইন্টারন্যাশনাল প্লেয়ার্স খেলছে, তো আমি আরও ইন্সপিরেশন হবে। তো ওটাই আমার জন্য ইন্সপায়ার ছিল। আর মানবেন্দর স্যারের অনেক লাইক অনেক হেল্প হয়েছিল আমার রিগার্ডিং ব্যাটিংয়ে। আমি ব্যাটিংয়ে টেনিস ব্যাটিং করতাম, কিন্তু ওনার হেল্পে আমি আজ যা খেলছি, ওনারই সব অ্যাওয়ার্ড আছে, যাই আছে। তো তুমি
সিএবির জন্য কি কি লোকাল টুর্নামেন্ট, মানে সিএবির জন্য কি টুর্নামেন্ট খেলেছো, আন্ডার 14, 16? এর জন্য আন্ডার 16 খেলেছিলাম, তারপর আন্ডার 18 হয় ওটা খেলেছিলাম, তারপর সেকেন্ড ডিভিশন খেলি আমি মৌরি স্পোর্টিং দিয়ে। উৎপল চ্যাটার্জি আমার কোচ তখন, মৌরি স্পোর্টিং উনিও হেল্প করেছেন আমাকে, উনিও সাপোর্টিভ ছিলেন, উনি আমাকে দোকান দিয়ে পিক করতেন প্র্যাকটিস নিয়ে যাওয়ার জন্য, তো ওনারও যোগদান আছে আমার কেরিয়ারে। সেকেন্ড ডিভিশনে ওই বছর আমি 800 রান করি। তারপর আর 2 বছর আমি সেকেন্ড ডিভিশন খেলি মৌরির হয়ে, তো ওনার অনেক হেল্প হয়েছে, ওনাও হেল্প করেছে, উৎপল চ্যাটার্জি নাম ওনার। তো সেকেন্ড ডিভিশনের ডেবিউ ম্যাচের এক্সপিরিয়েন্স কেমন ছিল? নার্ভাসনেস ছিল বা কি ছিল? নার্ভাসনেস তো ছিলই, ওটা একটা বল, প্রথম বল খেলার যে মিডল অফ দ্য ব্যাট লাগবে ওটা পেলে কনফিডেন্স পাওয়া যায়, তো ছিলই, কিন্তু অত নার্ভাসনেস ছিল না। যেহেতু আমার অ্যাকচুয়ালি কি আছে কি, আমি উপর দিয়ে নিচে যাই, যে নিচে দিয়ে উপরে আসবে ওর জন্য প্রবলেম। আমি তো নিচে দিয়ে উপরে যাচ্ছি, ওখান দিয়ে আমি পড়বো আবার নিচেই আসবো, আর আমি জানি নিচের অবস্থা কেমন, তো অত ভয় লাগেনি সত্যি বলছি, এখনো ভয় লাগে না ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে। আমি চাই ডমিনেট করতে, যেখানে খেলি, যে কোনো লেভেল খেলি, সেকেন্ড ডিভিশন খেলু, ফার্স্ট ডিভিশন খেলি, রঞ্জি খেলি, যাই খেলি, তো ডমিনেট করতে হবে, ওটাই শিখেছি। আর ও সিচুয়েশনকে ম্যানেজ করতে হবে। তো তোমার সেকেন্ড ডিভিশন জার্নি 2 বছরের ছিল মৌরি স্পোর্টিং এর সাথে। তারপরে ফার্স্ট ডিভিশন তোমার কোন ক্লাব খেললো? তারপর প্রথম ফার্স্ট ডিভিশন খেলি আমি নেতাজি সুভাষ ইনস্টিটিউট দিয়ে। অমরিশ দা অনেক হেল্পফুল, মানে অনেক হেল্প করেছে আমাকে, গাইডও করতো ক্রিকেটে। তো আমার প্রথম ম্যাচ ছিল ডালহৌসির এগেনস্টে, আমি 50 করি ভিডিওকন মাঠে, তো ওটা ফল 1 বাঁচিয়ে ড্র করিয়ে পয়েন্ট, তখন আমি 56 রান করি ডিবিউতে ডলহৌসির এগেনস্টে। সেকেন্ড ডিভিশন থেকে ফার্স্ট ডিভিশন গেছো যখন, তো এরম মানে কি ফিল হয়েছে ডিফারেন্সটা তোমাকে? ডিফারেন্স তো ছিল, অতটা নেই, কিন্তু ডিফারেন্স কি আছে, সেকেন্ড ডিভিশনে তোমাকে মারার বল দেবে, ফার্স্ট ডিভিশন মারার বল তুমি পাবে কিন্তু বেশি পাবে না, তোমাকে বানিয়ে মারতে হবে। সো ডিফারেন্স অত নেই, মাইন্ডসেটের খেলা সব। যদি সেকেন্ড ডিভিশনে যদি উপরের দিকের ম্যাচ দেখেন, কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল, সেম ফার্স্ট ডিভিশনে লেভেলে কোনো ডিফারেন্স হয় না। যে বলারের ট্যালেন্ট থাকবে, ব্যাটসম্যানের ট্যালেন্ট থাকবে, এটা জরুরি। বলার কি করছে, ব্যাটসম্যানকে কি করতে হবে ফিল্ডিংয়ে, ও ব্যাটসম্যান কি করছে আর বলার কি বল করবে, আমাকে রেডি থাকতে হবে। তো লেভেলের কোনো ডিফারেন্স হয় না, লেভেল হয় লাইক ইন্টারন্যাশনালে, ওইটা একটা লেভেল আছে, ফার্স্ট ডিভিশন সেকেন্ড ডিভিশন লেভেল নেই। তোমাকে কোচ লাগে ওখানে, আন্ডার 19 আন্ডার 16 কোচ লাগে, ইন্টারন্যাশনালে কোচের দরকার হয় না। ওখানে তোমাকে নিজে প্রুভ করতে হবে, কোচ গিয়ে বলবে না কি এটা এই বলকে কভার ড্রাইভ মারতে হবে, ওই বলকে সূর্যকুমার যাদব কভার ড্রাইভ না মেরে পুল মেরে দিচ্ছ ওই সব বলকে, তো ওখানে লাগে না, এখানে লাগে কোচ। তো এজ গ্রুপ তুমি খেলেছো সিএবির হয়ে, তো বেঙ্গল ট্রায়ালে পৌঁছেছিলে? পৌঁছেছিলাম বেঙ্গলের প্রথম সিএবি আন্ডার 19 এর গেছিলাম, দাদা দাঁড়িয়েছিল ওখানে, উনি প্রথমে ব্যাটিং করছিল নেটে, তারপর বাইরে এলো আন্ডার 19, তো উনি দাঁড়িয়েছিলেন সোজা, তখন আমি ব্যাটিং করছিলাম, তখন ওই বছর হয় 700 রান করে যাই, তখন উনি সোজা দাঁড়িয়ে দেখছিলেন ব্যাটিং, তো উনি একটা কথা বলেছিলেন মনে আছে এখনো, কি ক্রিকেট ছেড়ো না, লেগে থাকো। তারপর আবার আমি ট্রায়াল দিতে যাই আন্ডার 23, ওর মধ্যে আমি কোচের নাম নেব না, আমি ওই বছরও রান করি, কিন্তু কোচ আমায় বলে তুমি বোলিং করো লেগ স্পিন, তো আমি পার্ট টাইম লেগ স্পিন করতাম। তো আমার 5 উইকেট সিজনে, 5 উইকেট আছে, আর প্লাস আমি 1200-1300 রান করছি, তো অ্যাজ এ ব্যাটসম্যান আমাকে ব্যাটিংই দিল না নেটে। তারপর আমার সিলেকশন হলো পিসেন্ট ট্রফিতে, সিএবি ইমার্জিং 11, ওর মধ্যেও 16 জনের মধ্যে নাম ছিল না, হয়তো পলিটিক্সই হতে পারে বলতে পারে, তো তাই দেখে আমাকে এই মুভ নিতে হলো। এটা কোন এজ গ্রুপ, আন্ডার আন্ডার 19 19? তো এখান থেকে ফার্স্ট ডিভিশন তুমি বছর খেলেছো? ফার্স্ট ডিভিশন আমি 2 বছর খেলি, নেতাজি খিদিরপুর। তারপর কোন এজে লাস্ট খেললে এখানে কলকাতা মাঠ? 2018। তো তারপরের তোমার যে লাইফ, যে ইন্টারেস্টিং পার্ট, ওখানে আমরা মুভ করব। ওখানে হাউ ডিড ইউ গেট ইনটু ওমানস ডোমেস্টিক ক্রিকেট? একটা আমার দাদা ছিল ওখানে কাজ করতো, জব করতো, ও আমাকে 2017 দিয়ে বলছিল কি একবার ওমান এসে খেলে যায়, তো আমি ওকে অত সিরিয়াসলি নিতাম না, কি আমি বললাম এখান দিয়ে রঞ্জি ট্রফি খেলি, তারপর ব্লু জার্সি পরা তো সবারই স্বপ্ন থাকে অ্যাজ এ ক্রিকেটার। তো ওখানে বিনীত দা নাম ওর, উনি আমাকে বললো কি 2017-তে বলেছি, তখন আমি যাইনি, তো 2018-তে আমি ভিসা ট্রাই করেছি, ভিসা আমার রিজেক্ট হয়ে গেল। 2019-এ আমি ট্রাই করি, তো তখন দেখলাম এখানে কিছু হচ্ছে না, 2019-এ আমি ভিসায় ট্রাই করি, তো ভিসা আমার এসে যায়, তখন আমি যাই ওখানে মানে। তো এক্সপিরিয়েন্সটা খুবই, প্রথম প্রথম যাচ্ছে, নার্ভাস তো ছিলামই,
ফ্লাইটে কোনোদিন চড়িনি ডিউ টু ক্রিকেট ফ্লাইট চড়লাম। ক্রিকেট আমার লাইফে অনেক কিছু এনেছে। তো ওই ওমানে গিয়ে খেলা অনেক টাফও ছিল আর অনেক কিছু শিখেওছি, এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে। ओमान के लिए जब क्रिकेट खेलने के लिए गए, तो सबसे पहला बात कि ये एक अपॉर्चुनिटी मिलना, जैसे सच बोला जाए तो अभी कोई अगर बोलता है ओमान चलो या बाहर दुबई चलो कहीं भी खेलने चलो, सबसे पहले तो आदमी डरता है स्कैम से, ठीक है? और तब कोविड भी नहीं आया था। कभी सुनते हैं कि कोई किसी का पासपोर्ट छीन लिया, काम करा रहा है, ऐसा करा रहा है। तो आपका उस समय मतलब क्या थिंकिंग था? आप कितना टाइम लिए इस डिसीजन को लेने में? टाइम तो मैंने बहुत लिया, एटलीस्ट 1 ईयर लिया था। पहले सोचा था मैं कि उधर जाऊंगा फिर क्या होगा, लोग कैसे मिलेंगे। सुने थे कोई पासपोर्ट ले लेता आने नहीं देता, ये भी सुने थे। इनफैक्ट वीडियोस भी वायरल होते थे। तो फिर भी मैं हिम्मत थी मेरे अंदर कि इधर तो कुछ नहीं हो रहा, और जिसको लाइफ में कुछ करना हो तो रिस्क लेगा ही। चाहे आज 10 दिन लो 20 दिन लो, बट जाना ज़रूरी था वो। तो गया वहाँ, बट जाके देखा मैं वहाँ पे ऐसा कुछ माहौल नहीं है। या डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी था, वहाँ डिसिप्लिन है। सब कुछ टाइमली होता है। पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है वहाँ पे। तो वहाँ जाके एक लाइफ में को कैसे मेंटेन करना है वो मैं सीखा। फोकस कैसे रहना है वो सीखा। और सबसे ज़रूरी बात डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन आपके लाइफ में होना चाहिए। वो नहीं होगा तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते, आप कभी ना कभी नीचे गिरेंगे। यहाँ पे डिवीज़न खेलने के डिवीज़न जब खेल रहे थे, जब ये ओमान का आया था ऑफ़र, ठीक है? तो तब आपका रियलाइज़ेशन कैसा था कि मतलब आपका परफ़ॉर्मेंस हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रहा उतना। तो आप उन दोनों में सोचिए, आपको उस समय अगर बोला जाता कि बंगाल का आप खेलेंगे और एक तरफ ओमान में जॉब भी है और क्रिकेट भी है, तो आप किसको चूज़ करते? तब आप प्रेफ़र करते जाना ओमान? उस टाइम तो मेरे को प्रिपरेशन ओमान ही था, क्योंकि मेरे घर की कंडीशन सही नहीं थी। क्योंकि घर में स्ट्रीट पापा स्ट्रीट हॉकर थे, मम्मी भी दुकान में ही काम करती थी। तो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था। फाइनेंशियल सपोर्ट क्रिकेट से ही आता, मेरे को क्रिकेट के अलावा कुछ आता नहीं है, और मज़ा भी नहीं आता लाइफ में। अगर मैं कुछ और करता तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरे को यही चीज़ मैं 20 साल से करता हुआ आया हूँ। इसी चीज़ का एक्सपीरियंस है। तो ये चीज़ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं ओमानी प्रेफर करता, बंगाल खेलने से ज़्यादा। ये बात आप जब घर में बोले, तो मम्मी-पापा का क्या रिएक्शन था? उनका क्या था? मम्मी पापा को मैंने झूठ बोला था कि मैं 2 महीना में आ जाऊंगा, मैं बस खेलने के लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला पहले सोच लो क्या करना है, इधर से खेलो। उन लोग का भी मन कहीं ना कहीं दुख हुआ होगा कि ये बंगाल छोड़ के जा रहा है। एक्चुअली पेरेंट्स का सेक्रीफाइस, एक्चुअली आई एम द फर्स्ट चाइल्ड। तो उनका उनका सेक्रीफाइस, उनका जो भी है दुख तो होगा ही, बट वो डिसीजन उनका था, मेरा भी था। फ्यूचर प्लान अच्छा हो जाएगा, घर का सिचुएशन सही हो जाएगा, इसीलिए जाना पड़ा। वहाँ पे आपको क्या बोल के बुलाया गया, जॉब के लिए कि पूरा एंटायरली क्रिकेट के लिए? वहाँ पे पहले बोला गया था 1 साल तुम जॉब करोगे, पहले परफॉर्म करोगे तो जॉब नहीं कराऊंगा, तो ये बोला गया था। तो मेरे को लगा कि पहले देखता हूँ जाके जैसा रहेगा, अगर सही रहा तो मैं रहूँगा, अगर नहीं रहा तो नहीं रहूँगा। आपका इधर आप बोले मनोज तिवारी से बातचीत है, एक ही पाड़ा में रहते थे आप लोग, एक ही कॉलोनी में, रेलवे कॉलोनी में। तो उनसे बातचीत तब हो रहा था जब वो ओमान का जब ये हुआ था? नहीं नहीं, उस टाइम वो बिजी रहते थे, हम भी इतना टाइम नहीं रहता ना हमारे पास उनका कांटेक्ट था। क्योंकि उनका जो पुराना घर था, उसके बाद वहाँ से वो पता और कहीं और चले गए, और मैं भी भद्रेश्वर शिफ्ट हो गया। तो उतना कांटेक्ट नहीं बना, बट चाइल्डहुड में बात होती थी। मतलब उनसे उनसे जैसे लगाव सा हो गया था। मैं उनको देख के खेलना सीखा वो। एक्चुअली वो जो शॉट्स मारते थे, उनको देख के लगता था कि कोई खेल रहा है। तो उनका मेरे लाइफ में बहुत असर पड़ा। मैं आइडल मानता हूँ आज भी। तो उनका जो बैटिंग स्टाइल है, उनका जो स्पिन खेलने का तरीका है, आज इंडिया में बता रहा हूँ, बंगाल का बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया में उसके जैसा बैट्समैन नहीं है। नंबर 4 में उसके उसका जगह बनता है मनोज भैया का। ये तो दिल्ली मुंबई का पॉलिटिक्स है, इसीलिए मुश्किल है, नहीं तो उनका जैसा बैट्समैन नहीं है इंडिया में। तो बंगाल तो छोड़ ही दो, बंगाल तो वो चला रहे हैं बंगाल को अभी भी। तो ओमान जाने का डिसीजन आपके लिए तो बहुत ही लाइफ चेंजिंग था, लेकिन साथ में एक बहुत बड़ा उसके साथ क्या कह सकते हैं, सेक्रीफाइस आपका भी लाइफ में होगा कि सबका यहाँ पे कोई पाड़ा में भी क्रिकेट खेलता है तो सोचता है कि उसको इंडिया खेलना है, और आप तो यहाँ पे डिवीजन में रन कर रहे थे। तो ओमान जाने से आपका एक चीज़ पक्का था कि आप और इंडिया के लिए नहीं खेल पाएंगे, तो वो दुख कैसा था आपके लिए? वो तो दुख तो होगा ही। अगर जैसे कोई अपना घर छोड़ के जाता है तो दुख तो होगा ही। इनफैक्ट मैंने अपने मम्मी पापा को रोते हुए देखा है। जब मैं एयरपोर्ट से वापस ओमान जाता हूँ, वो हर साल होता है। नॉट ओनली आगे होता था, अभी अभी भी होता है, क्योंकि दुख होगा ही। क्योंकि फैमिली छोड़ के जाता हूँ, और अपने देश के लिए खेलना कौन नहीं चाहता।
कल मेरे को ऑफर मिलेगा खेलने के लिए तो मैं खेलूँगा। बट अपने देश के लिए खेलना अलग बात होती है, ओमान के लिए खेलना अलग बात है। तो यही था। और तो ओमान जब आप पहुँचे, तो वहाँ का सिनेरियो डिस्क्राइब करिए, कैसा था मतलब एक्सपीरियंस? पहले मैं पहुंचा यहाँ से, एक तो फ्लाइट में आइडिया नहीं था, पहली दफ़ा फ्लाइट में चढ़ा। मुंबई से मेरा फ्लाइट था ओमान के लिए, तो वहाँ जाके उतरा। तो वहाँ इतना क्लीननेस, बहुत वहाँ क्लीननेस बहुत है, रोड्स पूरे क्लीन रहते हैं। मतलब अगर बोलोगे तो 50% आगे है ओमान इंडिया से। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ड्राइवर्स वहाँ पे वेल एजुकेटेड है। ऑल पीपल आर वेल एजुकेटेड। वहाँ पे कोई स्कैम नहीं होता, और वहाँ पे आपको जो बोला गया वही मिलता है। ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई पासपोर्ट ले लेता है, कोई किडनैप कर लेता है, ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे हर जगह इंडियन एम्बेसी है, तो कोई भी प्रॉब्लम होता हो तो आप इंडियन एम्बेसी में जाके बात कर सकते, कंसल्ट कर सकते, तो हेल्प करते हैं वो लोग। वो जब तक आप उधर जाएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? जैसे ढोल का आवाज़ दूर से सुनने में अच्छा लगता है, सामने जाओगे तो पता चलेगा। तो बात वही है, जब तक आप जाओगे नहीं उधर तो पता कैसे चलेगा? चाहे मैं अभी बोलूँ आपको कि इधर बैठ के ओमान ऐसा ऐसा है, जब तक आप जाओगे नहीं तो आइडिया नहीं होगा। तो ओमान जब आप पहुँचे, वहाँ पे आपको क्रिकेट के लिए बुलाया गया था, तो क्या प्रोसीड्योर था वहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए? वहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट एक्चुअली कंपनीज खेलती है, कंपनीज की सेवरल टीम होती है। जैसे एक अल्तुर की कंपनी है, उनका टीम है, रेनाइसेंस एक टीम है, तो उनका सब टीम है, तो वो लोग खेलते हैं उधर पे। ए से बी डिवीज़न तक टीम होती है, फिर प्रीमियर की एक बड़ी टीम होती है। प्रीमियर में 6 टीमें होती है, उसमें से जो परफॉर्म करेगा। और ओमान खेलने के लिए आपको वहाँ पे 3 साल परफॉर्म करना है, फिर आप खेल सकते हो ओमान के लिए। वो हर कंट्री का रूल है, ये आईसीसी का रूल है कि अगर आप अपना कंट्री छोड़ के कोई और कंट्री जाते हैं तो आपको 3 साल आपको उधर रहना पड़ेगा। एटलीस्ट 10 मंथ वंस इन अ ईयर रहना पड़ेगा, तो ही आप खेल सकते हैं, नहीं तो नहीं खेल सकते। तो आप वहाँ पे किस टीम के होके खेल रहे थे? रेनाइसेंस के लिए खेलता था वहाँ पे, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, और लेग स्पिन करता था। पहला साल मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पे। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम जब उतरा वहाँ पे फ्लाइट, दूसरे दिन मेरी मैच थी। वहाँ पे जब मैच खेलने उतरा, सब बोल रहे थे गर्मी होती है वहाँ, वाकई में सबसे ज़्यादा गर्मी वहीं होती है। 48 डिग्री में था फर्स्ट मैच खेला, तो फर्स्ट मैच उतना अच्छा नहीं गया, बट बॉलिंग में मैंने 2-3 आउट किए थे, तो मेरे को 2 साल का वीज़ा मिला। फिर मैं परफॉर्म करता गया 3 साल में परफॉर्म किया, उसके बाद मैं ओमान के लिए खेला। कंडीशंस वहाँ पे क्या है, पूरा बैटिंग है कि बॉलर को भी हेल्प है? मिशन शुरू के 10 ओवर, चाहे कोई भी ओपनर हो, जो भी हो, वहाँ पे सर्वाइव करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे गीली विकेट होती है, और बॉल की थोड़ा कोका पूरा बॉल रहता है, बॉल हिलती है। और वहाँ पे शुरू वनडे खेल रहे हैं, मैं वनडे का बात कर रहा हूँ। T20 में बात अलग है, T20 में 2 बजे के बाद मैच होती है, सवेरे मैच नहीं होते हैं। सवेरे खेलना मुश्किल है T20, वहाँ डे नाइट मैचेस ज़्यादा होते हैं, शॉर्ट फॉर्मेट D10 ज़्यादा होते हैं। हाँ, गर्मी ज़्यादा रहती है वहाँ पे। एक्चुअली वर्क वो है, कॉर्पोरेट कल्चर। वहाँ पे फ्राइडे और सैटरडे ही मैच होता है। यूजली वहाँ पे सब लोकल्स खेलते नहीं, वहाँ पे इंडियंस, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, इंडिया का जितने फर्स्ट क्लास प्लेयर है, श्रीलंका का फर्स्ट क्लास प्लेयर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, सब फर्स्ट क्लास प्लेयर वहाँ पे जाके खेलते हैं। तो जिनको उनको वहाँ पे चांस नहीं मिला, वो लोग जाते हैं। तो वहाँ पे क्रिकेट क्रिकेट के फील्ड्स कैसे थे कंपेयर टू बंगाल? मैं गया था तब वहाँ पे उतना नहीं था, बट अभी हम लोग अच्छा कर रहे हैं। ओमान अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप भी खेला, अभी एशिया कप भी खेलेगा। तो धीरे धीरे सब इम्प्रूव हो रहा है। एक चीज़ के लिए एक टाइम चाहिए होता है आपको इम्प्रूव करने के लिए, तो प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। तो प्रोसेस में है, ओमान अभी सही कर रहा है। वहाँ पे विकेट कैसा होता है? विकेट होता है लाइक डबल पेस विकेट होता है, ठीक है, स्पिन भी होगी, पेस भी होगी। तो विकेट सेम ही रहता है, बट थोड़ा सा कंडीशन अलग है इंडिया से। और सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज वो गर्मी का है, वहाँ गर्मी बहुत होती है। अभी तो आप जाओगे 49 डिग्री, 50 डिग्री एवरेज। वहाँ पे सबसे मिनिमम टेम्परेचर आपने क्या एक्सपीरियंस किया? मिनिमम टेम्परेचर 32, विंटर तो 28। विंटर सिर्फ 6 महीना होता है, बारिश कम होती है, 1% बारिश होती है। तो वहाँ का पेमेंट किस हिसाब से है मैच? वहाँ पेमेंट आपको मिलता है $300 पर मैच, US डॉलर। तो $300 मिलते हैं अगर आप वनडे खेले, T20 खेले। तो वो $300 जो आप बिगिनर थे आपको मिला, कि वो सबसे टॉप प्लेयर्स लोग का था पर मैच? जो मतलब बिगनर्स, जो का मतलब जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन लोग का था। कैप्टन का, वाइस कैप्टन का, मैनेजर का अलग फीस है। तो वहाँ का जो डोमेस्टिक क्रिकेट आप देखे, आप कौन से डिवीजन से शुरू किए? वहाँ पे मेरे को डायरेक्ट प्रीमियर खेलने का ऑफर था। ए के ऊपर जो होता है प्रीमियर, हाँ, प्रीमियर का ऑफर था, तो मैं गया, प्रीमियर खेला, फिर आइडिया हुआ कि कैसे
तो प्रीमियर में वहाँ पे कौन कोई यहाँ का कोई मिला यहाँ का या फिर कोई भी बाहर का प्लेयर अच्छा जबरदस्त? हाँ, ज़्यादातर पाकिस्तान का फर्स्ट क्लास प्लेयर था, अफगानिस्तान का था, श्रीलंका का था, और वहाँ के जो पेस बॉलर है वो लोग ज़्यादातर पाकिस्तान से हैं। तो वहाँ पे थोड़ा चैलेंजिंग था कंडीशन, क्योंकि वहाँ पे स्विंग ज़्यादा होती है एक तो, और वो आउटफील्ड स्लो रहती है, वहाँ पे आप नीचे से मार के रन नहीं कर सकते। अगर आप 50 ओवर में 250 करते हैं तो आप जीत जाओगे। वहाँ पे 50 भी करना टफ रहता है, क्योंकि नीचे ही मारेंगे, जाएगा नहीं बॉल। रनिंग बिटवीन द विकेट तेज करना है, और छक्के पे डिपेंड रहना पड़ेगा, बड़े शॉट्स रहना ज़रूरी है। आज के डेट में इंटरनेशनल क्रिकेट में जिसके पास बड़े शॉट है वही प्लेयर है। आप देख लीजिए निकोलस पूरन को, अभिषेक शर्मा को, प्रभासिमरन सिंह को देख लीजिए। तो बड़े शॉट बहुत ज़रूरी है आज के डेट पे, इंटरनेशनल क्रिकेट जिसको खेलना, चाहे जो भी क्रिकेट खेले, नॉट ओनली इंटरनेशनल, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, आपको 35 बॉल में 100 करना है। अगर 100 बॉल खेल के 60 करेंगे कोई नहीं देखेगा आपको, और कोई लेगा भी नहीं आपको, क्योंकि आप डोमिनेट नहीं कर रहे। डोमिनेट करना सीखना पड़ता है, तो वो सब वहाँ पे जाके सीखना पड़ा खेल के। बस स्ट्राइक रेट मेरे स्लो था, तो फिर मैंने इम्प्रूव किया। तो वहाँ पे जो प्रीमियर डिवीज़न खेले बहुत सारे पाकिस्तानी थे, तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी लोग को देखे खून तो खौलेगा ही, तो कभी उल्टा-पुल्टा कुछ हुआ है तर्का-तर्की? नहीं, ऐसा तो नहीं है, वो गेम में तो होती है, हिट एक्सचेंज होता है, बट जब फील्ड के बाहर रहते हैं हम लोग तो इतना कोई नहीं, दोस्त है सब। वो जो बोल मीडिया का काम है ये सब, पाकिस्तान इंडिया का, हम लोग जब गेम में रहते हैं तो हम लोग एज अ क्रिकेटर ही देखते हैं उनको, रेस्पेक्ट रहता है। और एक बॉलर मेरे को वहाँ पे अच्छा लगा, उनका नाम है फयाज भट्ट, वो अंडर 19 पाकिस्तान खेले हैं। उसने इंडिया के अगेंस्ट भी खेला, उसने केएल राहुल, मनीष पांडे, इन लोगों को भी बोल्ड किया था। उनकी जो पेस थी, काफ़ी ज़बरदस्त पेस है उसकी। तो वहाँ का जो विकेट्स, एक तो इतना गर्मी, वहाँ पे पेस बॉलर ज़्यादा चलता है कि स्पिनर? मतलब डेथ में भी आप अगर देख लो। पे वहाँ पे पेस बॉलर चलते हैं। पेस बॉलर शुरू में अगर अच्छे कर दिए तो आपका रन बनाना मुश्किल है। स्पिनर्स है अच्छे, बट पेस बॉलर्स ज़्यादा अच्छे हैं। और अगर पेस बॉलर बैट्समैन हो तो और ज़्यादा। तो वहाँ पे जो रहने का फैसिलिटी कैसा था आपका? रहने का बहुत ही सुपर क्लास फैसिलिटी था। मेरे को गाड़ी दिया दिया गया था, ड्राइवर भी था साथ में। तो इधर जो फैसिलिटी नहीं मिल रहा था तो वहाँ मिल रहा था, टाइमली सब कुछ था। सवेरे जिम हुआ करता था, दोपहर को प्रैक्टिस। काम में जाना ज़रूरी नहीं है वहाँ, तो क्योंकि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जॉब का, तो मैंने परफॉर्म किया, मेरे को जॉब भी नहीं देना, बस सैलरी देते रहे, और मैं कंपनी के लिए खेलता था, खेलता गया, बस बाद में ओमान खेल गया। तो आपको जो पैसा मिल रहा था $300 तो बहुत ही होता है, अभी का 24,000, तब के हिसाब से भी इन्फ्लेशन हटाए तो पकड़ लीजिए 20,000। तो आप फैमिली को भी बहुत हेल्प कर पा रहे थे। तो वो कंपैरिजन अगर करें हम लोग बंगाल क्रिकेट से, तो फिर वहाँ का डोमेस्टिक क्रिकेट और यहाँ का डोमेस्टिक क्रिकेट कितना डिफरेंस है, कितना आगे है? यहाँ पे एक्चुअली रेड बॉल का जो है, इधर पे रेड बॉल ज़्यादा खेला जाता है, वहाँ पे वाइट बॉल खेला जाता है। वाइट बॉल और रेड बॉल में मैसिव डिफरेंस है, क्योंकि वो हिलती है, रिवर्स स्विंग होगा, वाइट बॉल पे भी होती है बट ज़्यादा नहीं होती। तो वाइट बॉल का क्रिकेट अलग है। अब बंगाल हमेशा रेड बॉल पे रिलाय है। रेड बॉल खेलोगे तो छोड़ना, डिफेंस करना, सीधा बैट खेलना ज़रूरी है। बट वाइट बॉल में आपको आपको अपना मतलब स्किल से थोड़ा और ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम रहता है उसमें, 50 ओवर्स में आपको टारगेट देना है, फिर आपको बॉलिंग भी कैसी करनी है। रेड बॉल में भी होती है, बट रेड बॉल में चैलेंजिंग कंडीशंस रहता है, बट वाइट बॉल में अलग बात है। वहाँ पे यहाँ का तो अंपायरिंग आपको पता ही है, बहुत ज़बरदस्त है, मतलब बैट पैट भी आउट होता है इधर। वहाँ का अंपायरिंग में क्या मतलब, वो ऑब्वियसली वो लोग इंडिया से तो बहुत देसी क्रिकेट में पीछे है, लेकिन उन लोग का कैसा है मतलब फैसिलिटी अंपायरिंग का? अंपायरिंग तो ओके, डीआरएस भी है उसमें, और रन आउट सब कुछ, कैमरा, स्पॉटलाइट, सब कुछ मैच लाइव होता है। तो मतलब मीडिया वाले सबको ही देखते हैं। इनफैक्ट वहाँ का जो फ्रेंचाइजी टीम, अभी जैसे यहाँ बंगाल प्रो T20 होता है, वहाँ पे D20 होता है, डोमेस्टिक D20, उसमें भी होता है, नाम आता है बॉसर बस्ट। मैं जो खेलता हूँ, मैं टीम का नाम है बॉसर बस्टर्स। तो आप कितने साल ओमान ए आप रिप्रेजेंट किए हैं, तो उस टीम में घुसने के लिए कितना साल आपको खेलना पड़ा डोमेस्टिक क्रिकेट? खेला 4 साल। उसके बाद फिर ओमान ए में कैसे सिलेक्शन हुआ फिर? ओमाने में वो मज़ेदार स्टोरी है। एक्चुअली मेरा टिकट था, 30 जून को मैं जा रहा था इंडिया, क्योंकि सीज़न ख़त्म हो गया। ये 2022 का बात कर रहा हूँ, 2023 का एंड में बता रहा हूँ, जून के एंड में। तो मैं जा रहा था कहीं और, मैं इंडिया जा रहा था मम्मी पापा से, क्योंकि 1 साल में आता हूँ, खेलता हूँ, फिर मैं चला जाता हूँ। तो उस साल क्या हुआ, मैंने रन किया सबसे ज़्यादा। उस साल मेरा बहुत अच्छा सीज़न गया, मतलब उससे अच्छा सीज़न एक बैट्समैन का जैसा होना चाहिए वैसा गया। तो मेरे को लग रहा था कि मेरा नाम आ सकता है, बट आई वाज़ नॉट श्योर। सो मैं गया, तो 30 का टिकट था, तो मैं रात को सो रहा था। तो इन लोगों का टीम अनाउंस हुआ, तो हमारा जो वाइस कैप्टन था,
उनका एंकल इंजरी हो गया। तो मेरे को अचानक फ़ोन आया सडनली कि तुमको आना पड़ेगा श्रीलंका, 27 को तुम्हारा मैच है अगेंस्ट अफ़गानिस्तान ए। तो मैं बोला इतना जल्दी प्रिपरेशन शायद भगवान चाहता है, तो मैं बस चला गया, सिलेक्शन ऐसे ही हुआ मेरा। तो ये अचानक हुआ सिलेक्शन जो ओमान ए में। तो वहाँ पे जैसे यहाँ पे जैसे बाहर का प्लेयर लेके बहुत कंट्रोवर्सी है। जैसे कोई यूपी का हो, कोई एमपी का हो, कोई भी स्टेट का हो अदर देन बंगाल। तो यहाँ पे नॉन बंगाली लोग को भी अभी देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वहाँ पे आपको ऐसा कुछ माहौल मिला कि जैसे आप इंडियन हैं, ठीक है? तो आपको एज़ एन आउटसाइडर ट्रीट किया गया। ऑब्वियसली थोड़ा तो ट्रीटमेंट करेगा, थोड़ा बायस होगा ही। लेकिन जब ये सिलेक्शन हुआ और जब आप वो प्लेइंग 11 में गए, तब कैसा था ड्रेसिंग रूम का माहौल आपके लिए? देखो वो सब चीज़ें तो होती रहती है। अपना काम है कि वो खिलाए, ना खिलाए, हमको अपना काम करना है। अगर मैं बाहर बैठा हूँ, मेहनत करूँगा, तो वो एक चांस हमारे लिए काफ़ी है। ये ज़रूर सोचिए, ये मत सोचिए बाहर का प्लेयर है, अगर बाहर का प्लेयर को आप टक्कर दे सकते हैं तो ही आप इंडिया खेलेंगे। बंगाल का मत सोचिए, बंगाल रणजी ट्रॉफी खेलेंगे, आप सोचेंगे तो बाहर का प्लेयर आके खेल रहा है। प्रोटेस्ट करना अच्छी बात है, प्रोटेस्ट हक के लिए बात करना अच्छी बात है, बट आप उसको अगर टक्कर देके आप खेल सकते हैं, इंडिया खेलने का सोचिए। ये बात हाँ वहाँ पे होती है, ये सब चीज़ें नॉर्मल है, ये इसको आप कंप्लेन नहीं कर सकते। ये भी एक लाइफ का चैलेंज है, इसको भी टैकल करना सीखना पड़ता है। तो वहाँ पे ओमान ए का फिर मैचेस जो खेलने गए, अफ़गानिस्तान के साथ फर्स्ट मैच था। तो उस फर्स्ट मैच में क्या हुआ? फर्स्ट मैच में हम तो फील्डिंग करने गए, हमारा फील्डिंग था, तो हम लोग को टारगेट दिया गया 240। तो मैं बैटिंग करने गया, हमारा 7 पे 2 था। तो वहाँ पे वो इंटरनेशनल एरिना में मतलब बॉल इतनी तेज़ आ रही है, क्या बताऊँ अब। 145 140 के एवरेज स्पीड था। अफगानिस्तान आपको पता ही है, इजली रन मारने नहीं देंगे। फिर भी हमने कोशिश की जितना हो सके, बट सब गॉड प्लान से रन नहीं बने उस मैच में, 10 पे आउट हो गया था मैं। बट अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि इंटरनेशनल में आइडिया नहीं लगता आपको रन बनाना कैसे, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है और इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि इंटरनेशनल में जाते साथ आप रन नहीं कर सकते, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, उधर कैसी बॉलिंग होती है। वहाँ पे वीडियो एनालिस्ट रहता है, वो बताता है आपको ऐसा बॉलिंग ऐसा प्रिपरेशन मेरी हुई थी, बट हुआ नहीं रन। वो क्रिकेट फ्लिप है, पार्ट ऑफ द गेम होता नहीं, कॉइन जैसा। आप फ्लिप करेंगे, वो हेड आएगा तेल आएगा, बट आपको अपना काम करना है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में जो ग्लैमर हम लोग देखते हैं, और ये ओमान ए के लिए आप जो खेले, ये कौन सा टूर्नामेंट था? इमर्जिंग कप। तो इमर्जिंग कप में भी ये लाइव होता है टेलीकास्ट, पर उतना ग्लैमर नहीं है। लेकिन लेवल ऑफ क्रिकेट कैसा है, मतलब ऑलमोस्ट लाइक इंटरनेशनल? तो क्रिकेट ये लेवल थोड़ा अलग है, मैं पहले भी बोला हूँ, इंटरनेशनल क्रिकेट अलग चीज़ है। उस पे अगर आपको रबाडा बॉलिंग कर रहा है 150 पे, वो पीछे जाने का मौका ही नहीं है। तो उसमें ऑन द टोज में रहना ज़रूरी है, आप चाहे फील्डिंग में भी, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी, उसको रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि वो अलग लेवल है। फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, रणजी ट्रॉफी से भी हम लेवल अलग है, वो अलग लेवल की क्रिकेट है। वो खास करके अंडर लाइट्स खेलना, वो अलग टफ है थोड़ा, क्योंकि अंडर लाइट्स, ओवरकास्ट कंडीशन, तो फिर अगर बारिश हो गया, बारिश के बाद आपको कैसे खेलना है, वो भी प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। तो अफगानिस्तान का कोई बड़ा प्लेयर आया था जो अभी इंटरनेशनल खेल रहे हैं मेन टीम से? नूर अहमद था, नूर अहमद, चाइना मैन, अजमतुल्ला उमर रज़ाई, ये लोग थे। नूर अहमद का बॉलिंग श्रीलंका तो कह सकते हैं कि टर्नर ही होता है, कुछ अच्छा होता है कुछ टर्नर होता है। तो उस कितना इफेक्टिव था नूर अहमद? एक्चुअली श्रीलंका की विकेट में सबसे ज़्यादा टर्न होती है, इंडिया से भी ज़्यादा। इंडिया में बॉल गिर के धीरे घूमती है, वहाँ पे बॉल गिर के तेज़ घूमती है, और वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है श्रीलंका में। विकेट तो है, बैटिंग विकेट है, बट स्पिनिंग फ्रेंडली है। तो नूर अहमद का बॉल खेलना मतलब अलग ही लेवल पे स्पिनर है। उस टाइम उस ऐसा बॉल नहीं करता था जैसा अब इस आईपीएल पे किया है, तो उसको पिक करना बहुत मुश्किल होता अंडर लाइट्स। तो वहाँ पे ऐसा कोई मोमेंट था, या फिर यहाँ पे पहले बात करते हैं कोलकाता मैदान में, कि आपको डिसरेस्पेक्टेड फील हुआ हो, वो बंगाल ट्रायल या फिर कहीं भी कोलकाता मार्ट में कहीं भी? सर एक तो बात है, 200 मारने के बाद भी मेरे को नहीं खिलाएंगे तो क्या सोच सकते हैं आप। वनडे में मैंने डिस्ट्रिक्ट में 200 मारा था, 45 ओवर्स का मैच था, उसमें सब रेल रेल के प्लेयर थे, उसमें नहीं मौका मिला। उसके बाद मेरे को कॉल आया 19 का, उसमें मौका नहीं मिला। 23 में कॉल आया, मौका नहीं मिला। CAB इमर्जिंग 11 में कॉल आया, खिलाया नहीं गया। तो ये तो डिसरेस्पेक्ट तो यहाँ किया गया, वहाँ तो रेस्पेक्ट ही किया गया। तो यहाँ का जो पॉलिटिक्स है, ये अभी भी चल ही रहा है, अब और ज़्यादा हो गया है। तो अभी आपको अगर कोई ऑफ़र करे कि आप रणजी ट्रॉफ़ी खेलेंगे, और वहाँ से भी ऑफ़र है कि ओमान खेलना है,
तो आप कौन सा प्रेफर करेंगे? यहाँ पे अगर बोलेंगे तो खेल लूंगा, कोई बात नहीं, बट अच्छा बैकअप होना चाहिए जो सपोर्ट करे। कि एक मैच से आप पता नहीं लगा सकते कि ये बैट्समैन है या बॉलर है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और सबको इक्वली ट्रीट होना चाहिए। अगर वो 10 खेल रहा है तो हमको भी 10 मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो एक खेलेगा तुम 10 खेलोगे, ऐसा सपोर्ट होगा तो उसको फ़ायदा मिलेगा। और जो बंदा खेलते खेलते, क्रिकेट ऐसी चीज़ है, खेलते खेलते सीखते हैं। आप डायरेक्ट जाके खेलोगे ऐसा नहीं होगा। ओमान में आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम कितना हो रहा था? लैंग्वेज प्रॉब्लम तो एक्चुअली सब एशियंस के ही हैं वहाँ पे, तो ज़्यादा बेसिकली सब हिंदी बोलते हैं वहाँ पे। क्योंकि ओमानीज जो है वो क्रिकेट नहीं खेलते, वो लोग को फुटबॉल ज़्यादा पसंद है, वो फुटबॉल कंट्री वाली है। वो लोग क्रिकेट में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते। जो श्रीलंका, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी सब तो एक्चुअली एशियंस है, तो कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं। 4 साल आप वहाँ खेले, ओमान ए के लिए भी खेले। मैंने क्लिप्स देखा है आपका, आपने अच्छे अच्छे शॉट्स लगाए, रन भी किया है। तो फिर वो जॉब का क्या हुआ फिर? जॉब तो अभी भी है, जॉब का कोई दिक्कत नहीं है, जॉब तो चलती रहती है। बट वहाँ पे जो होती है ना, क्रिकेट अभी ग्रो हो रही है, तो वहाँ जाना भी ज़रूरी है। तो वहाँ पे शिफ्ट होने के बाद आप कोलकाता मैदान मिस कर रहे थे? कौन नहीं मिस करेगा, अपना होम टाउन है। मैं हम हमेशा आता हूँ, तो मैं घूमता हूँ इधर। मैं खेलता था, इस क्लब में करता था। लेकिन यहाँ पे जैसे आपको ट्रीट किया गया, उसके बाद आप वहाँ पे जैसे सक्सेस कर रहे हैं, पा रहे हैं, तो आपको लगता है कि ठीक है, अच्छा डिसीजन था मेरा वहाँ शिफ्ट होने का? एक्चुअली मैं इतना सोचता नहीं हूँ उससे, बात यही है। इतना सोचूंगा तो फिर रिजल्ट्स नहीं आएंगे। वो डिसरेस्पेक्ट जब किया गया था, अभी तो सब रेस्पेक्ट ही करेंगे। एक कहावत है हम हिंदी में, उगता हुआ सूरज को सब सलाम करते हैं। तो वही काम है, आपको अपना काम करना रहेगा। बाहर वाले बहुत कुछ बोलेंगे, इसको ये नहीं आता, वो नहीं आता, बट आपका रिजल्ट डिसाइड करेगी आप हो कौन, क्या कर सकते हो। यहाँ से अगर कोई बाहर जाना चाहेगा, ठीक है, सोचिए किसी को मौका मिला है, तो आप उसको रिकमेंड करेंगे बाहर जाने, या फिर बोलेंगे कि नहीं यहीं पे ट्राई करो मोर लॉन्गर? सबसे पहले लाइफ का डिसीजन उसका अपना होगा। मैं तो एज अ गाइड ही कर सकता हूँ कि उसको क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर उसको लगता है यहाँ पे स्कोप है तो ऑफ कोर्स इधर ट्राई करें, अगर नहीं लगता है तो जाना चाहिए। क्योंकि उसका लाइफ का सवाल है। हम तो बोल देंगे कि वो बेटर है, ये बेटर है, उनको डिसीजन लेना ज़रूरी है। बांग्लादेशी लोग के साथ आप खेले हैं, तो बांग्लादेशी वो जो पेस बॉलर था तंजिद का, जो आपको शॉट लगाया है, हाँ, हसन शाकिब, तो उसका पेस और उसका स्विंग, और ओमरजाई का स्विंग, दोनों में क्या डिफरेंस दिखा? वो परफेक्ट बॉलर है, तंजम हसन साकिब। उसने विराट कोहली को भी आउट किया है T20 वर्ल्ड कप में। उसकी आउट स्विंग थोड़ी लीथल है। वो मतलब लेग स्टम्प से भी स्विंग कराता है आउट स्विंग, तो उसको खड़ा खड़ा खेलना थोड़ा टफ है। उसको आप चल के खेलो, और उसकी बाउंसर भी तेज़ है। और बांग्लादेश जैसी टीम है, वो जल्दी रन बनाने नहीं देती। वो आपको पकड़ लेगी एक बार तो आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा। तो ऐसे भी प्रेशर में था, 7 पे 4 था, 7 रन पे 4 गिरे हुए थे। वहाँ से मैंने कुछ 35 रन किया। सो उधर वो वाला 35 मेरे लिए लाइक मोमेंट ऑफ गोल्ड होता है ना, उस टाइप का ही था। क्योंकि विकेट थोड़ा चैलेंजिंग था। बट सेकेंड इनिंग्स में विकेट थोड़ा बदल गए। उन लोग का जो नईम शेख है उसने बहुत मारा, धागा खोल दिया एकदम मारे। वहाँ पे इंडिया ए जब गया था, तो उनके लिए भी ट्रीटमेंट सेम था कि वो रिचेस्ट बोर्ड से है इसलिए उनके लिए ट्रीटमेंट अलग था? इंडिया पावर हाउस है क्रिकेट का, बोल सकते हो मक्का ऑफ क्रिकेट है वो। उसके उनको प्रोटोकॉल अलग है। उनका कैप्टन था यशदुल। यशदुल था उसपे, उस टीम पे अभिषेक शर्मा था, प्रभा सिमरन सिंह था, और ये हर्षित राणा था। फिर और एक प्लेयर था, उसका नाम मैं भूल गया, रियन पराग था। उनका क्या मतलब, क्या ऐसा ट्रीटमेंट था अलग? उनका प्रोटोकॉल ही अलग था, उनको 7 स्टार होटल में रखा गया। उनकी बैग की जो कीमत है, बैग की बता रहा हूँ, 5-6 लाख की तो बैग थी उनकी। और हमारे उतनी बोर्ड के पास पैसे नहीं जितना इंडियन, आज के डेट में इंडियन बोर्ड चाहे तो पूरा ऑल कंट्री का बोर्ड खरीद सकता है, BCCI। वहाँ से बोर्ड से कितना सपोर्ट मिलता है, मतलब क्रिकेट वो कितना ग्रो करना चाहते हैं अभी? करना तो चाहते हैं वो लोग, कौन नहीं चाहेगा कि मेरा कंट्री का नाम हो। हर कोई चाहेगा कि मेरा कंट्री खेले इंटरनेशनल लेवल पे और ज़्यादा। ग्रो हो रहा है धीरे धीरे, उसके लिए टाइम चाहिए। अभी हम लोग वहाँ पे रेड बॉल नहीं खेलते। रेड बॉल का एक एडवांटेज है कि टेम्परमेंट बिल्ड होता है। आपको बिल्ड बड़ा इनिंग्स खेलना सीखेंगे आप, रेड बॉल जितना खेलेंगे। आपको छोड़ना आना चाहिए, ये सब ज़रूरी है रेड बॉल। बट वाइट बॉल में आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलना पड़ेगा। इसलिए तो मैं कहता हूँ दिल्ली के लड़के, मुंबई के लड़के क्यों आ गए। आप स्ट्राइक रेट देखिए, आप स्ट्राइक रेट देखिए बंगाल का। और जो बंगाल प्रो T20 में 20 ओवर में 250 तक नहीं बना, वहाँ पे 20 ओवर में 300 बन जा रहे हैं दिल्ली में। तो विकेट का भी दोष दे सकते हैं,
क्योंकि बैट्समैन का गलती नहीं होता, विकेट वैसा पाटा मिलता है वहाँ पे। इधर पे विकेट अलग है। और थोड़ा ये ऑड सीजन में भी करा रहे हैं, रेनी सीजन में बंगाल को T20 में। तो आप अभी ओमान के रेसिडेंट हैं? मेरा रेसिडेंट वीज़ा है ओमान का 2 साल का। फ्यूचर में क्या प्लान है, वहाँ का सिटीजनशिप मिले तो? हाँ, मिलेगा तो अच्छी बात है। तो मैं पहले भी वहाँ मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। अगर इंडिया से कोई अच्छा ऑफर मिले, नॉट ओनली फ्रॉम बंगाल, फ्रॉम अदर स्टेट्स ऑल्सो, जो कि है, सपोर्ट तो है, मिलता है। बट मेरे लिए जो सही होगा मैं वही डिसीजन लेके मूव करना चाहूँगा। बीसीसीआई यहाँ से खेलने से एक प्रॉब्लम है जो मैंने देखा है कि आप सिर्फ आईपीएल खेल सकते हैं और कोई मतलब क्या बोल सकते हैं, मतलब और कोई फ्रेंचाइजीज खेल नहीं सकते, जैसे अबू धाबी T20 T10 लीग या फिर मेजर लीग क्रिकेट, ठीक है। तो आप ओमान से अगर खेलते हैं तो आपके लिए बहुत सारा इंटरनेशनल खेप का रास्ता खुल जाएगा। तो आप क्या मतलब वो अगर ऑफ़र मिले आपको, ठीक है, सपोज़ आप ओमान से खेल रहे हैं, फिर आपको कोई कुछ इधर से बुला लिया, दुबई से बुला लिया, फिर पीएसएल से बुला लिया, साउथ अफ्रीका बुला लिया, कनाडा बुला लिया, तो आपको क्या लगता है, मतलब इंडिया का बोर्ड में ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो ये खेलने नहीं देते हैं? इंडिया के पास इतना पैसा है क्रिकेटर्स के पास, वो उसको ज़रूरत ही नहीं है उधर इधर खेलने की, सबसे पहली बात। और वो आईपीएल वर्ल्ड में सबसे बड़ी लीग है, उसके बाद ही सब कोई लीग आता है, अबू धाबी जो भी है। तो उन लोगों को ज़रूरत नहीं है। बाकी जो एसोसिएटेड नेशन में प्लेयर है उन लोगों को तो उतना पैसा नहीं मिलता वहाँ से खेल के। ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख मिलेगा एक मैच का, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो उनके लिए वो रास्ता है वो अपना नाम बनाने का, और एक्सपीरियंस भी अच्छा है वो सब लीग खेलोगे तो। बट वो सब शॉर्ट फॉर्मेट की लीग है, D10 होती है अबू धाबी में। वो दुबई जो कंट्री है वो अभी ग्रो कर रही है धीरे धीरे और ज़्यादा, क्योंकि अभी वहाँ पे सबसे ज़्यादा टूर्नामेंट होता है। तो एक्चुअली बारिश नहीं होती वहाँ पे जल्दी, तो वहाँ पे कंटिन्यू क्रिकेट चलता रहता है। तो आपको दूसरा कोई कंट्री से ऑफ़र है, जैसे यूएई या फिर पाकिस्तान कहीं से? मेरे पास एक्चुअली 3 ऑफ़र है। अभी रिसेंटली आपसे बात कर रहा था तो कुवैत से ऑफ़र आया हुआ है, दुबई से ऑफ़र है, और एक यूरोप कंट्री है पुर्तगाल, वहाँ से भी ऑफ़र है। तो देखता हूँ जो मेरे लिए बेटर होगा वही ऑप्शन चूज़ करूँगा। तो आप ओमान का फिर आपका जॉब का क्या होगा अगर आप कहीं और शिफ्ट कर गए? जॉब जॉब करके आप क्रिकेट खेलोगे वो तो बात की बात है, बट मैं पहले भी बोला मैं ज़्यादा नहीं सोचता। अच्छा पैकेज मिलेगा तो मेरे को मूव करना पड़ेगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ माय फैमिली। किसको भी पसंद नहीं है पैसा, पैसा सबको चाहिए। तो जहाँ अच्छा पैकेज मिलेगा वहाँ जाऊँगा। तो अभी आपको कह सकते हैं कि आप एक एस्टेब्लिश्ड प्लेयर हैं, तो आप अभी यहाँ पे अपना घर में मतलब कितना कुछ ग्रो किए, डेवलपमेंट किए अपना घर में? तो एक्चुअली अभी ओमान से खेल के आके घर लिया था, तो घर लेना ही बहुत बड़ी बात है। वहाँ पे ज़्यादातर इनकम चले गए। उसके बाद बाइक नहीं थी, बाइक वाइक लिया गया। अभी थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेबल है, यू कांट से दैट हाई स्टेबल है, मिडिल क्लास कह सकते हो। घर में सब अभी मतलब आपको तो बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट तो हमेशा से था ऑब्वियसली, लेकिन एक घर लेना, आपके मम्मी पापा जैसे आपने कहा कि स्ट्रीट हॉकर थे, क्या क्या बेचते थे वो मतलब? हम लोग को मूढ़ी चॉप होता है ना, बंगाली लोग जो खाते हैं। एक्चुअली मेरे पापा बंगाली है, तो मूढ़ी चॉप, हाँ, तो मूढ़ी चॉप वो जो खाते हैं वही बेचते हैं, अभी भी बेचते हैं, इसमें कोई बात तो आपको एक मूडी चॉप से ये मैं मतलब हम सब मिडिल क्लास ही हैं, हम लोग जो कर रहे हैं सब क्रिकेट खेल रहे हैं अपना बेटरमेंट के लिए, तो मूडी चॉप बेच के जैसे क्रिकेट खेल के आप एक घर बना रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा बात कह सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न खेल के भी किसी को 15 साल 20 साल लग जाता है घर बनाने में, और अभी भी उसका लोन चलते ही रहता है। तो आप अपना करियर का हाईलाइट में अगर आप पीछे घूम के देखें कि आप यहाँ पे कोलकाता मैदान से खेलते तो आपका शायद ये घर नहीं होता, और अभी ओमान जाके या फिर बाहर जो भी क्रिकेट खेल के आपका हो रहा है, तो आपको घर से मतलब घर से या फिर रिलेटिव से कितना अभी सपोर्ट है, और तब कितना सपोर्ट था और अभी कितना सपोर्ट है? सपोर्ट तो देखो, सब सब ही करते हैं। मम्मी पापा तो हमेशा सपोर्ट करते हैं, चाहे आप पैसा कमाए या ना कमाए। वो तो चाहेंगे आप खुश रहें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हैप्पीनेस। और क्रिकेट मेरे को बहुत खुश रखता है लाइफ में। डिप्रेशन ये सब से क्रिकेट खेलोगे आप डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे। क्रिकेट ने बहुत कुछ दिया। आप घर का सोचे, क्रिकेट के थ्रू मैंने फ्लाइट में घूमा, क्रिकेट ने मेरे को कहाँ से कहाँ लाया। वो क्रिकेट का बहुत लाइक ग्रेटफुल टू क्रिकेट, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू क्रिकेट राइट। तो अभी जो अंकल आंटी जो मतलब बेचते हैं अभी भी बाहर मूड़ी चॉप जो बेच रहे हैं, तो अब आपको लगता है कि अब उनको ये काम नहीं करना चाहिए क्योंकि अब स्टेबल हैं आप? एक्चुअली पापा कहते हैं कि अगर काम नहीं करूँगा तो बैठे बैठे मतलब बोर हो लगते हैं, फिर बीमारी हो जाएगी। तो वो बोलते हैं कि मेरे को करना है, इसीलिए करते हैं। अपने मम्मी पापा को खुश करना तो सभी कोई चाहता है, आफ्टर ऑल हम लोग कमाते हैं फैमिली के लिए, अपने लिए बाद में फैमिली के लिए पहले। तो कितना प्राउड फील होता है जब आप ऐसा देखते हैं कि एक घर बना के दिए आप
एक अच्छी जगह में हो। फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है। फैमिली की खुशी में आपका खुशी है। अब मम्मी पापा पहले जितना स्ट्रगल किए हैं वैसा स्ट्रगल कोई किया नहीं है मेरे लिए आज तक। मतलब माँ बाप तो माँ भी बाप होते हैं ना, वो लोग तो चाहेंगे कि आप अच्छा पढ़ो अच्छा करो लाइफ में, हमेशा गुड विशेस रहती है। तो बस देखता हूँ पीछे मुड़ के कि पहले था अभी थोड़ा सिचुएशन सही है। आपके लिए आपका टर्निंग पॉइंट कौन सा है क्रिकेट का, मतलब करियर का कोई टर्निंग पॉइंट मोमेंट है? मेरा टर्निंग पॉइंट वही है 2019 3 सितंबर में मैं गया था ओमान। वही मेरा टर्निंग पॉइंट था। और अभी पीछे देखता हूँ तो मेरा सबसे बड़ा अच्छा डिसीजन था लाइफ का कि ओमान में गया था खेलने। तो वहाँ पे कोई फनी मोमेंट था ग्राउंड में कुछ, मतलब पहली बार जाके क्योंकि वो कुछ बोल रहा हो और समझ ना आ रहा हो, या फिर फनी कम्युनिकेशन मोमेंट में? था वो फनी मोमेंट था आपका एयरपोर्ट पे। एक्चुअली समझ ही नहीं आ रहा था, लैंग्वेज बैरियर था। वो लोग अरबी बोल रहे हैं, हम इंग्लिश बोल रहे हैं। वहाँ पे इंग्लिश तो बोलते हैं बट अरबी लोग इंग्लिश नहीं बोलते। तो वो जो बोल रहा है वो समझ नहीं आ रहा, मेरे को जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ नहीं रहा। थोड़ा लैंग्वेज बैरियर था। और कुछ कुछ आइडियाज़ नहीं था जो बाहर जाके लगा। वहाँ पे लेफ्ट हैंड ड्राइव है, वो भी आइडिया नहीं था। मैं देखा यहाँ पे उल्टा चल रहा है गाड़ी से, इस तरफ है। तो ये सब चीज़ें कॉमन थी, वो हो जाता है। जो भी कोई इतना नीचे से जाके उधर जाएगा तो उसके लिए तो ये लाइक होता है ना, कार्निवल है। वहाँ पे ओमान में ड्रेसिंग रूम में मतलब माहौल कैसा रहता है? जैसे आपको पता है कि आप कल खेल रहे हैं बांग्लादेश के साथ, ठीक है, और 90% चांस है कि आप हार रहे हैं क्योंकि सोमो सरकार वो यहाँ पे इतना सारा इंटरनेशनल करियर का एक्सपीरियंस है उसके पास, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे खेलने गया है। और आपको पता है, मतलब कहीं ना कहीं पता है कि हम लोग इन लोग के साथ हार तो सकते ही हैं, बुरी तरह भी हार सकते हैं, ठीक है। ऐसा होता ही है टू बी ऑनेस्ट देखा जाए तो, क्योंकि बहुत बड़ा टीम है। अब इंडिया के साथ अगर खेलेगा दुबई, तो ऑब्वियसली जाना बात है कि दुबई हारने वाला है, देखना है कि कैसे हारता है। तो एक तो है आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, अच्छा है, आप लोग को खुद के ऊपर बिलीफ है, लेकिन कोई बड़ा मैच के आगे आप लोग को कोई मोटिवेशन देता है कोच? वहाँ पे कोच का क्या रोल है वहाँ पे? कुछ हमारे दिलीप मेंडिस सर है, तो वो बहुत ही अच्छे कोच है, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन भी थे श्रीलंका के लिए। तो वो मोटिवेशन करते हैं और वो वेल मेंटेन्ड भी है, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है उसके। मतलब वो उनका फील्डिंग में, मतलब फील्डिंग ड्रिल्स जो वो कराते हैं, उनके जैसा फील्डिंग ड्रिल्स कोई नहीं कराता। वो बहुत ही अच्छा फील्डिंग ड्रिल्स कराते हैं। और आप जो बोल रहे थे कि टेस्ट प्लेइंग नेशंस के साथ खेलना, वो एक टाइप का एक लर्निंग भी है। हराना जीतना वो तो पार्ट ऑफ द गेम है। बट हम लोग तो सोचते हैं कि एक हराए, हिस्ट्री क्रिएट हो, एक बड़े टीम को अपसेट करना। ऐसा हो चुका है क्रिकेट हिस्ट्री में। और क्रिकेट इज़ अनप्रेडिक्टेबल, क्योंकि क्रिकेट परफेक्ट नहीं है। और टेबल टेनिस में आपको पता रहता है कि आपको टेबल के अंदर बॉल मारना है, फुटबॉल में आपको गोल पोस्ट के अंदर बॉल मारना है। क्रिकेट में क्या होता है, अगर बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, उसने स्लैश भी किया, स्लिप के ऊपर से चले गए तो लोग ताली मारते हैं। तो आप समझ लीजिए क्रिकेट परफेक्ट नहीं है। सो क्रिकेट में रिजल्ट्स का कोई कुछ भी हो सकता है। लाइक रिंकू सिंह का वो इनिंग्स देखिए आप, 6 बॉल पे 5 छक्का। कौन पेस बॉलर को कौन ऐसे मारता है? तो क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। आप कभी आपका दिन अच्छा गया तो एक बैट्समैन आपको जिता के चला जाएगा, कभी 9 नंबर वाला बैट्समैन जिता के चला जाएगा। तो ऐसा है, क्रिकेट आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। रहा बात टेस्ट प्लेइंग नेशंस के साथ खेलना, बांग्लादेश हो गया, इंडिया भी हो गया या ऑस्ट्रेलिया जो भी है, उनमें से आप सीखने मिलते हैं आपको। उनका जो फील्ड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उनका फील्ड प्लेसमेंट बहुत अच्छी है टेस्ट प्लेइंग, क्योंकि वो लोग टेस्ट प्लेइंग नेशन है। उन लोग को ज़्यादा, आपको अगर ग्राउंड में 6 6 घंटा मिलेगा, 5 दिन, वो 5 दिन का टेस्ट खेलते हैं वो लोग। मतलब टेस्ट 5 दिन का होता है तो उसमें आपको 6 6 घंटा रहना पड़ता है। तो उन लोग को आइडिया ज़्यादा है। और अभी ओमान उठ रहा है, तो लेट्स सी इन होप कि इन फ्यूचर हम लोग अपसेट कर सके कोई बड़ा टीम को। तो वो मैच हारना जीतना जो भी हो, उसके बाद ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल रहता है फिर? उसके बाद होती है, थोड़ा सैड तो होते हैं सब कोई। इनफैक्ट मैं तो रो रहा था यार, बांग्लादेश वाला मैच में 35 पे आउट होके अच्छा नहीं लगा मेरे को। इनफैक्ट मेरे को भी रोना आ रहा था कि काश मैं कंटिन्यू करता, 200 तक ले जाता। तो मैंने वहाँ पे विकेट थ्रो कर दिया, तो उससे मेरी भी गलती है। दूसरे को ब्लेम करने से ज़्यादा ज़रूरी अपना देखना चाहिए, वो ज़रूरी है कि मैंने क्या किया। मैं जाके वहाँ पे विकेट थ्रो कर दिया सेट होने के बाद। उस जगह पे आप थ्रो नहीं कर सकते विकेट, क्योंकि आप सेट है, एटलीस्ट आप 70 बॉल खेल चुके हैं। तो आप सेट है, आपको कंटिन्यू करना चाहिए। तो वो मेरी गलती थी, इसलिए वो टीम हार गई। वो अगर हमारे पास 200 रन की होती टारगेट तो शायद बांग्लादेश हार सकता था। वहाँ पे ये इमर्जिंग कप के दौरान कोई कंट्रोवर्शियल कुछ फाइट हुआ था कोई किसी के साथ? एक फाइट हुआ था तंजम हसन साकिब के साथ। वो मेरे को हाफ वॉली बॉल कर रहा था तो मैं ड्राइव नहीं मारा। वो बंगाली में कुछ आके बोला, वो लैंग्वेज में पॉडकास्ट में बोल नहीं सकता। हाँ, मैं बांग्ला समझता हूँ। तो मैं उसको बंगाली में बोला,
ও আবার করে দেয়, আমি আবার कवर ड्राइव मेरे देखाচ্ছি। उसने किया फिर मैंने मार दी। फिर वो देखा ही नहीं मेरे को, ना मैं उसको देखा। फिर वो अपने बॉलिंग रन पे चला गया। आप लोग का ड्रेसिंग रूम में सबसे फनीएस्ट बंदा कौन है, पाकिस्तान का या फिर कहीं का भी? फनीएस्ट बंदा है हमारे टीम में एक पृथ्वी मच्छी बोल के, वो रिसेंटली यूएसए के अगेंस्ट खेला है, वो फनीएस्ट बंदा है। और एक हमारा वो भी एक तरह मतलब डैशिंग ओपनर है, हमारे कैप्टन है अभी रिसेंटली, जतेंद्र सिंह। उनके जैसा रिवर्स स्वीप वो एसोसिएट में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में अभी कोई नहीं मारता, क्योंकि वो रिवर्स स्वीप में पेस बॉलर को मार देते हैं। और उनका फ्लेक्सिबिलिटी इतना अच्छा है और बहुत अच्छे इंसान भी है। जतेंद्र सिंह नाम है उनका, बहुत ही अच्छा ब्रिलियंट क्रिकेटर है। और मतलब हमको हेल्प करते हैं वो कि कैसे कौन शॉट कैसे खेला जाएगा, कब कौन सा सिचुएशन में कैसा बैटिंग होना चाहिए, वो बताते हैं। और उनका भी योगदान है मेरे बैटिंग में, मतलब मेरा हाई बैट लिफ्ट बैट कहाँ से आना चाहिए, उसने बहुत हेल्प किया वो भैया ने। अभी भी वो बहुत ग्रेटफुल है और बहुत अच्छे इंसान भी है। तो वहाँ पे ओमान में इतना सारा एक्सपीरियंस गैदर करके अब आपका कोई प्लान्स है बंगाल क्रिकेट में कमबैक करने का? मैं पहले भी बोला हूँ, अगर अच्छा ऑफर मिलेगा बंगाल तो मैं खेलूंगा बंगाल से, चाहे वो फर्स्ट डिवीजन ही हो, मैं खेलूंगा, मैं सोचा हूँ। तो ये बंगाल प्रो T20 को आप किस नज़रिए से देखते हैं? मतलब आप ट्राई कर रहे हैं इसमें कुछ आने का? ट्राई तो कर रहा था, मैं थोड़ा लेट हो गया वहाँ से आने के लिए, क्योंकि वहाँ में हमारा सीज़न ख़त्म हुआ, तब तक मैं आया तब तक यहाँ पे ड्राफ्टिंग हो चुका था। मे भी शायद नेक्स्ट ईयर में भी आई ट्राई। तो यहाँ पे कोई प्लान है अगला साल डिवीजन खेलने का? अगर अच्छा पैकेज मिलेगा तो ज़रूर खेलेगा, वरना बहुत सारी कंट्री है, कोई ना कोई कंट्री तो खेल ही लूँगा जाके वहाँ पे लीग। यहाँ पे क्लब खोजते हैं, आप पूरा कंट्री खोज रहे हैं। हाँ वो मैं पहले, आप थ्री इडियट्स मूवी देखे हैं ना, उसमें बोलता है पहले आप एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस खुद ब खुद आ जाएगी। तो मैं आमिर खान का तो फ़ैन नहीं हूँ, बट मैं उस मूवी का फ़ैन हूँ। आप वहाँ पे कैप्टेंसी किए ओमान में? नहीं नहीं, कैप्टेंसी मेरा पार्टी नहीं है। मैं अपना फोकस बैटिंग में रखना चाहता हूँ, इन फ्यूचर अगर होगा तो मैं करूँगा। सो वी हैव रीच्ड द एंडिंग ऑफ आवर शो। तो शुभोदा, थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करके, आपने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बोली हैं जो मैं मतलब सीनियर से, अभी तक जितने मैंने पॉडकास्ट किए हैं मैं सीनियर से बहुत कुछ सीख रहा हूँ। ऑलमोस्ट सब मेरे सीनियर ही आए हैं, बस एक विशाली था जो मेरे पीयर एज का था, उससे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है ऑब्वियसली, पर आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। आपका मेंटालिटी बहुत अच्छा लगा मेरे को, एकदम आप चिल है, रिलैक्स है, बहुत अच्छा लगा। और आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर अहेड। एंड फिर मिलेंगे, आप फिर आइएगा तो फिर मिलेंगे। एनी क्लोजिंग थॉट्स, एनी मैसेज टू आवर व्यूअर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज नाइस, फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस फ्रॉम माय साइड आल्सो। पॉडकास्ट ये मेरा पहला था। अच्छा लगा भैया से बात करके, और बहुत कुछ सीखा भी पॉडकास्ट में, कैसे क्या होता है। इट वाज अ लाइक अमेजिंग एक्सपीरियंस आई हैव एवर हैव इन माय लाइफ। सो थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ऑल द crew members also. সো দিস ওয়াজ শুভ পাল উইথ আরিয়ান। অ্যান্ড আমি আগামী এপিসোডসে আরও অন্য অন্য গেস্টদের আনবো। আপনারা ভালোবাসতে থাকুন আমার এপিসোড। আর চেষ্টা আছে যে কাউকে ছোট করার না বা কাউকে এক্সপোজ করারও না, আমার অন্য অন্য প্লেয়ারদের এনে একটা এমন এক্সপিরিয়েন্স গেইন করানোর, সবার মানে ধারণার চেঞ্জ করে দেওয়া যে একটা ক্রিকেটার কি গো থ্রু করে নিজের ক্যারিয়ারে। কেউ বিএমডাব্লিউ করে আসছে, সেও ইন্ডিয়া খেলছে, আর কারোর মা বাবা স্ট্রিট হকি করছে, সেও ইন্ডিয়া খেলার স্বপ্ন দেখছে। কেউ যদি নাও খেলতে পারে, ও অ্যাটলিস্ট ট্রাই করছে। আর যেটা ট্রাই করছে, ক্রিকেট এত দূর যাকে আনছে, ক্রিকেট ধরেই ওরা চলছে। তো ক্রিকেট একটা নিজেদের মধ্যে একটা ডিসিপ্লিন, একটা মোটিভেশন যা আছে আমাদের ক্রিকেটই আছে। তো এই শো ইটস অল অ্যাবাউট ক্রিকেট। অ্যান্ড this was all, and I will meet you with another episode with another guest. So visit the profile of Cricket Insiders, like, share and comment, and get to know the unknown.